Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with chapter number 6 of Onthrujan 1 class 9. हमारा चैप्टर नंबर 6 है ले लुआजीर एलिस्पोर्ट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, बस जो हमारी जो वर्ब आएगी ना एक ओवर हेयर, जो ये है हमारी इम्पारफे और पासे कॉम्पोजिट, सिर्फ यही हमारी मेन इंपॉर्टेंट वर्ब है, तो इन पर हम ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे, बाकी कंसेप्ट तो इजीली हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय दिस टेक्स्ट पार्ट. It says Akanksha, Kunal, Pauline et Denis viennent de déjeuner. Ils vont se promener au jardin du Luxembourg. Means Akanksha, Kunal, Pauline and Dennis are coming. Viennent means are coming for having lunch. Ils vont se promener au jardin du Luxembourg means they are going to have a walk in the jardin du Luxembourg. So ये हमारा एक बेसिकली पार्क का नाम है, jardin du Luxembourg. ठीक है, फिर हमारे डायलॉग्स आते हैं कुछ. पोलिन क्या कहती है? किसके tu as fait hier means what did you did yesterday, what you did yesterday. आकांक्षा कहती है le soir. Kunal et moi nous sommes allés au stade de France means the evening. Kunal and me we went to the stadium of France pour le concert de Céline Dion means for the concert of Céline Dion. Céline Dion she is an Canadian singer. ठीक है, ये chanteuse québécoise मीन्स अ क्यूबेक्वास सिंगर. अब क्यूबेक क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि कैनेडियन सिंगर है. क्यूबेक इज़ बेसिकली अ सिटी इन कनाडा, तो हम उसको क्यूबेक्वास बोले या कनाडिया बोले, सेम चीज़ है. ठीक है, बस क्या हुआ, क्यूबेक्वा को थोड़ा सा हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ क्यूबेक से है, कनाडिया में हम कंट्री को स्पेसिफाई कर रहे हैं. Et le matin, je suis allée au bureau de poste pour envoyer un colis à ma soeur en Onde. Means, and the morning, I went to the post office for sending a package to my sister in India. L'après-midi, je lisais un bon roman pendant une heure. Means the afternoon, I was reading a good roman for रोमा हमारा क्या होता है, नॉवल. आई वॉज रीडिंग अ गुड नॉवल फॉर 1 hour, मतलब 1 घंटे तक उसने एक नॉवल पढ़ा. अब डेनिस पूछता है कुणाल मीन्स एंड कुणाल अब कहता है मुआ j'ai passé toute la matinée sur internet means me I passed whole मॉर्निंग ऑन द इंटरनेट मीन्स इंटरनेट पर वो सर्फिंग कर रहा था. Je trouvais un site intéressant sur Céline Dion means I found an interesting site on Céline Dion, वही सेम हमारे सिंगर. Je peux même commander un DVD de son dernier concert means I could even ask a DVD for our last concert. ए toi Pauline means and you Pauline. Pauline कहती है le concert न m'intéresse pas means the concert did not interested me, मतलब इसको अच्छा नहीं लगा वो concert. j'ai passé toute la soirée devant la télé means I passed whole day whole evening before the TV. Hier soir il y avait une très bonne émission sur TF1 means yesterday evening देयर वॉज अ वेरी गुड टी वी शो, मतलब बहुत अच्छा टी वी चैनल शो आया हुआ था ऑन TF1. आकांक्षा कहती है tu parles de quelle émission means you are speaking about which TV show. पोलिन कहती है यून इंटरव्यू द गेरार्ड Depardieu means an interview of Gerard Depardieu who is a person which is a person's name. फिर कहता है un célèbre acteur français means the famous French actor. Oui means yes. Et toi Dennis means and you Dennis. J'attendais mes copains tout l'après-midi mais personne n'est venu means I waited for my friends whole afternoon but nobody came. Alors je jouais aux jeux vidéo means so I played the video game. Oh, il est déjà 4 heures means oh, it is already 4 o'clock. Je dois rentrer chez moi. À bientôt means I have to go to my home back. See you soon. À bientôt. Dennis कहता है à bientôt. ठीक है. Now coming to over here on the imparfait पर आने से पहले we would discuss this one. L'argent ne fait pas le bonheur means the money does not bring out happiness. सिर्फ money ही नहीं है जिससे happiness हमें मिलती है. सो यहाँ पर हमने आप लोगों ने एक स्टोरी सुन रखी होगी कि एक हैन होती है जो कि गोल्ड एग्स जो है ले करती है, एंड एक ग्रीडी हमारा फार्मर होता है जो उसको पूरी तरह से काट देता है, उसको मार देता है ताकि उसको सारे के सारे जो एग्स हैं
गोल्ड एग्स हैं वो उसको मिल जाए, बट उसको कुछ नहीं मिलता। तो ग्रीडनेस की वजह से उसको क्या मिला, आखिर में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो वही स्टोरी यहाँ पर हमारे पास दे रखी है। इलेते क्यूनफुआ अफेमिए कियावे यूनपूल मीन्स देयर वॉज अ टाइम, there was a farmer who had a chicken. Tous les jours means every day. La poule pondait un œuf en or means every day the hen was laying a golden egg. Chaque lundi means each Monday. Le fermier allait au marché pour vendre les œufs means every Monday the farmer went to the market for selling the eggs. Ainsi il gagnait beaucoup d'argent means thus he earns a lot of money. ठीक है, the family était avide d'argent means the farmer had a greed of money, मतलब उसको पैसों की जो है greed थी. Un jour il a dit means one day he said pourquoi ne pas tuer cette poule et prendre tous les œufs en même temps means why don't I जो here यस, ट्यूर का हमारा क्या मीनिंग होता है, मतलब टीयर. वाई डोंट आई कट दिस hen एंड टेक ऑल द eggs at one time. Alors il a pris un grand couteau means so he took a big knife. Il a couru derrière la poule means he ran behind the hen. Il l'a attrapé et il l'a tué means he caught the hen and killed it. Hela, il n'a rien trouvé means हेला इज़ काइंड ऑफ एक्सक्लामेशन, जैसे कि हम करते हैं उप्स काइंड ऑफ. तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हेला हमारा फॉर टेलिंग कि हाँ बुरा लगा, कुछ गलत चीज़ हुई, तो उसके लिए हम हेला का यूज़ करते हैं. इल्लारिया थ्रू वे मीन्स ही डिड नॉट फाइंड एनी थिंग. ठीक है, तो उसको कुछ नहीं मिला. अब बात करते हैं यहाँ की. यहाँ पर आता है हमारा इम्पारफे. अब इम्पारफे क्या होता है, on utilise l'imparfait pour décrire une durée de circonstance passée means we use the imparfait for describing the duration of past circumstances. past में हमारा कुछ चीज़ हुई है, उसकी ड्यूरेशन को डिपिक्ट करने के लिए हम इम्पारफे का जो है यूज़ करते हैं. एंड यहाँ पर पासे कॉम्पोजे जो एक्शन ऑलरेडी सीरीज ऑफ इवेंट हमारा पास्ट में हो चुका है, उसके लिए हम पासे कॉम्पोजे का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन इम्पारफे एंड पासे कॉम्पोजे. अब पासे कॉम्पोजे हमने ऑलरेडी कर रखी है. अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है पासे कॉम्पोजे में, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लिंक इन द कमेंट सेक्शन. उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में पासे कॉम्पोजे के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको जाकर देख लेना. अब बात करते हैं हमारा इम्पारफे का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो इम्पारफे का बेसिकली फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इफ़ आई टेक द वर्ब ट्रावेले मैंने वर्ब ली, मेरे को इसका ज के साथ जो है कॉन्जुकेट करना है इम्पारफे के अंदर. तो सबसे पहले मैं ER को कट करूँगी. पुट हमें एंडिंग्स पुट करनी पड़ती है AIS AIS AI AI IONS IEZ AIENT AIENT AIS AIS AI IONS IEZ AIENT AIENT. तो ये हमारी क्या होती हैं, इम्पारफे की क्या होती हैं, ये एंडिंग्स होती हैं. ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद करनी है, राइट. एंड यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखी है, कुछ एक्सेप्शन दे रखी है. एत्र वर्ब की एक्सेप्शन इन द इम्पारफे, इसकी हमारी कॉन्जुगेशन ये वाले आप लोगों को जो है याद करनी पड़ेगी. ठीक है, आई होप इम्पारफे समझ में आ गया होगा. अब आते हैं हम यहाँ पर. सो बेसिकली अब तो थोड़ा ही चैप्टर रह गया, बहुत आसान था ये वाला चैप्टर. यहाँ पर देखो, j'apprends à utiliser les expressions qui expriment la répétition means I learn to use the expression which expresses the repetition. Autrefois, nous restions à la maison et nous écoutions de la bonne musique à la radio et cela ne coûtait rien. मीन्स autrefois मीन्स इन द ओल्ड डेज, पास्ट टाइम्स के अंदर हम घर पर रहते थे और वी लिसन टू द गुड म्यूजिक इन द रेडियो एंड उसका कुछ भी हमारा कोर्स नहीं होता था. aujourd'hui les jeunes aiment sortir means and today जो हमारे यंग बच्चे होते हैं, यंग जनरेशन होती है, they like to go out. ils vont au concert de rock à la discothèque means they go to the disco for the concerts. ils dépensent beaucoup d'argent means they spend a lot of money. ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी है, हेयर ऑल्सो एक्सरसाइज. यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 71.
टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसके बाद हमारे सिर्फ जो है एक्सरसाइज पार्ट दे रखा है, आप लोगों को वो सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज का ही करेंगे, ठीक है। ये हमारा कहता है j'apprends à exprimer la restriction means I learn to express the restrictions. Tu n'as que 16 ans means you are not 16 years old. Donc, tu n'as pas le droit de travailler means so you don't have the right to work. Tu as seulement 16 ans means you are only 16 years old. तो आप लोग कंपैरिजन देख सकते हो। फर्स्ट में हमने क्या करा कि तुम 16 ईयर्स जितने नहीं हो। सेकंड में हमने क्या कहा कि तुम 16, यू आर ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपने देखा होगा कि 16 ईयर्स का फर्स्ट केस में भी हुआ नहीं है एंड सेकंड वाले में 16 ईयर्स का ही है। इन दोनों केस में क्या है, यू आर नॉट गिवन द राइट टू वर्क। Tu ne penses qu'à sortir means you don't even think to go out. Tu penses seulement à sortir means you only think of going out. तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है। हमने क्या देखा, रेस्ट्रिक्शंस को एक्सप्रेस करना देखा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, इट इज़ फेयर ड्यू स्पोर्ट, फेयर ड्यू स्पोर्ट। नाउ हमें कॉलम दे रखे हैं एंड वी हैव टू मैच देम। दो कॉलम्स दे रखे हैं, ड्यू फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। सो फुटबॉल आप लोगों को देखना है कहाँ पर एंड उससे हम लोग मैच करेंगे। सो हेयर वी हैव फुटबॉल, इससे हमने मैच करा। लतासियों मीन्स स्विमिंग, तो स्विमिंग से हमने मैच करा। द एथलेटिज्म मीन्स द एथलेटिक्स। द ला मार्श मीन्स वॉक। जो बास्केट मीन्स बास्केटबॉल। द ला वॉल मीन्स सेलिंग। जो टेनिस मीन्स टेनिस। तो इसको हम करते हैं टेनिस, सेलिंग, बास्केटबॉल, द ला मार्श एंड एथलेटिक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करना सॉल्व करने की, एंड अगर नहीं होते तो कमेंट्स में मुझसे पूछना। एंड जो पासे कॉम्पोजे के लिंक मैंने आप लोगों को दिए कमेंट्स में, उसको भी ज़रूर जाके एक बार देख लेना, ओके।